हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सोशल साइंस, जो कि चैप्टर पहली है हिस्ट्री का। इसमें आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इतिहास का जो है चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी व्यू से जो है ये क्वेश्चन बनाई जा रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी पे कीजिए, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि इससे अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे अधिक कुछ आ नहीं सकता। आएगा भी तो इसी क्वेश्चन को जो है बना चढ़ा के दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझिए, सोचिए और विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। The next question is the most important here. What were the cases for the empty treasure of the France under the Louis XVI? Assess any three cases. There is the most important question for the exam view. Louis XVI. What were the causes for the empty treasure of the France under to the Louis XVI? Who is the Louis XVI? The Louis XVI is the most important question for here exam view. Who is the Louis XVI? The answer here. In the 1774, Louis XVI of the is overwhelmed family of kings ascended the return of the France. He found an empty treasure. The cases for it was a first long year of the war had to the dent to the financial resource of France. The condition was a served when to the under Louis XVI, France helped the 30s American colonies to the gain their independence from the Britain. There is the most important year, the long year of war had read the financial resource of France. Their condition was a served when to the under Louis XVI. And France helped to the 13th American colonies to the gain their independence from the Britain. And the next year, the second point, the king as a court at the immense is a place of the Versailles was the extravagant to the huge amount of money was required to its maintenance. There is the most important point here, the king as a court at the immense of the places of the Versailles was the extravagant and the huge amount of the money required for its maintenance. And third point is the most important here. A tax bearer lived only on third state. That is the most important. Taxes bearer lived only on third state and expected the first and second state which were rich. First and second state which are very rich, but taxes were lived only on third state. Therefore, is a Britain is added to more than billion leaves to be developed that had to the already risen to the more than 2 billion leaves. There is also important here. The bar with the Britain added to the more than a billion leaves to be developed of that had to be already risen to the more than 2 billion leaves. And the last point here is a fifth. The lender who had given to the state credit now began to a change of 10% interest on the existing loan. So the French government had to be spent on increasing percentage of its budget on the interest payment. There is also important here that the French government had to be spent on increasing percentage of its budget or interest payment because lender who had to give into the state credit now to begin to change the 10% interest on the exciting loan. There is the most important question here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है 10वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुईस 16वें के अधीन फ्रांस का खजाना खाली होने के क्या कारण थे। कि 3 कारणों का आकलन करना है हमने यहाँ पर। लेकिन सबसे पहली बात तो ये आता है कि लुईस 16वें था कौन, और लुईस 16वें की अगर हम बात ना करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम चैप्टर कर रहे हैं वो कहीं हद तक अधूरा रह जाएगा। इसलिए लुईस 16वें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कहते हैं लुईस 16वें के अधीन फ्रांस का जो खजाना था खाली हो गया था। इसका मतलब ये कोई राजा रहा होगा, यही जनरल सी बात आ रही है हमारे समक्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो लुईस 16वें कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप साफ लिख सकते हो कि 1774 में राजाओं के बेरवान परिवार के जो है लुईस 16वें ने फ्रांस के सिंहासन पर चढ़ाई की
और उसे एक खाली खजाना मिला, इसके कारण थे, यानी उसने चढ़ाई करके जो है अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, यानी लुइस 16वें जो था 1774 में राजाओं के बौरबान परिवार से लुइस 16वें ने फ्रांस पर चढ़ाई कर दी और उसे एक खाली खजाना मिला। इसे कई कारण थे। ठीक है, जनरली छोटी सी बात भी काफ़ी आंसर के लिए होता है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जो खजाना खाली हो जाने के कारण क्या था, कहते हैं कई वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन को खत्म कर दिया था और यह शर्त तब पेश की गई थी जब लुइस 16वें के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। यानी लुइस 16वें वो था जिसने 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता हासिल कराने में मदद किया था। और वो कौन किया था? लुइस 16वें ने। यानी कई वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन को खत्म कर दिया, क्योंकि फ्रांस ने कई सालों तक जो है युद्ध किया था और जिसके कारण जो था इसके संसाधन खत्म से हो गए थे। और ये शर्त तब पेश की गई थी जब लुइस 16वें के तहत फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद देखते हैं, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे समक्ष आता है तो यही बात बताता है कि वर्साइल के विशाल महल में राजा का दरबार असाधारण था और इसके रखरखाव के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए जो है लुइस 16वें को जो है खजाना खाली हो गया था, क्योंकि वर्साइल के विशाल महल में, यानी जितना बड़ा महल है आपको पता है उतनी ही मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और इसके लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, उस समय जो था डॉलर लगते हैं, रकम रखते हैं, कुछ भी कह लो, लगते तो है ना मेंटेनेंस के लिए। तो इसके कारण क्या हुआ कि सारे महल के जो है रख रखाव के कारण जो है बहुत मात्रा में जो है धन की जो है आवश्यकता पड़ती थी, जिसके वजह से क्या हुआ, खजाना फ्रांस की खाली हो गई। यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो आया है, कहते हैं केवल तीसरे स्टेट पर लगाया जाता था और पहले और दूसरे स्टेट को छूट दी जाती थी जो कि अमीर थे। अब यहाँ पर बात आप समझ सकते थे कि यहाँ पर पहले और दूसरे स्टेट जो थी अमीर वर्गों की थी, लेकिन तीसरा स्टेट में किसान होते थे, गरीब लोग हुआ करते थे, उन पे टैक्स लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि ये कहाँ की बुद्धिमत्ता थी, जो अमीर लोग थे उन पे टैक्स से उनको छूट दे दी गई थी और जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास धन दौलत नहीं था, उन पे जो है टैक्स लगा दिया गया था, जो कि बहुत एक विचित्र बात आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो था कर केवल तीसरे स्टेट पर लगाया गया था, यानी गरीब और किसानों पर लगाया गया था, लेकिन पहले और दूसरे स्टेट पे जो है बिल्कुल छूट दे दी गई थी, जो कि काफ़ी अमीर वर्गों का हुआ करता था। यदि बात यहाँ हम करें चौथी पॉइंट की, तो ये साफ करता है कि ब्रिटेन के साथ युद्ध ने 1 अरब से अधिक जीवन को जो है एक ऋण में जोड़ा। यानी देखा जाए ब्रिटेन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ कहते हैं ब्रिटेन को ही ऋण नहीं चुकाना पड़ा, हर एक जीवन को चुकाना पड़ा। जो नागरिक वहाँ पर रहते थे उन सब पे जो है ऋण की जो है बोझ बन गई। कहते हैं 1 अरब से अधिक जीवन को ऋण में जोड़ा गया, लेकिन पहले से ही 2 अरब से अधिक जीवन जो थे इस पे जड़े हुए थे। कहते हैं कि अगर कोई देश अगर ऋण लेती है तो इसका मतलब है कि उस देश के हर एक नागरिक उस ऋण के जो है कर्जदार बन जाते हैं। अगर मान लीजिए भारत में भी कोई अगर सरकार ऋण लेती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो होंगे ऋण जो है कर्जदार हो जाएंगे। ऐसा ही ब्रिटेन के साथ जो है युद्ध में जब 1 अरब से अधिक जीवन को ऋण में जोड़ दिया गया और कहते हैं पहले से ही और ऋण में डूबे हुए थे, तब जाके फ्रांस की जो है बहुत बुरी दशा हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन के साथ युद्ध ने 1 अरब से अधिक जीवन को जो है तहस नहस कर दिया, जो कि पहले से ही कहते अधिक लोग जो थे अपने जीवन को तहस नहस कर चुके थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जिन साहूकारों ने राज्य को ऋण दिया था वे अब मौजूदा ऋणों पर 10% ब्याज बढ़ाने लग गए। इसलिए फ्रांस सरकार को अपने बजट का बढ़ता प्रतिशत ब्याज भुगतान खर्च करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो साहूकारों ने ऋण दिया था अब उन्होंने क्या किया, 10% ब्याज जो है बढ़ा दिया। अब जो व्यक्ति भी होंगे, कोई व्यक्ति भी होगा, नागरिक भी होगा, अगर उसने ऋण लिया होगा तो जर्नल सी बात है वो जो है अपने बैंकों से या पैसे निकालेगा और ऋण को जो है चुकाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, खजाना खाली होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था कि जिन साहूकारों ने राज्य को ऋण दिया था, देखिए ये व्यक्तियों को ऋण नहीं दिए थे,
ये राज्य को ऋण दिया था, यानी एक स्टेट को ऋण दिया था। लेकिन जब वो 10% ब्याज बढ़ा दिया तो राज्य के जो है पूरे कर्ज जो है वह खजाना पर पड़ा, और खजाना से जो है साहूकारों को ऋण 10% एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा, जिसके कारण जो था पूरी तरह से जो था खजाना खाली हो गया। इसलिए फ्रांस सरकार को अपने बजट का बढ़ता प्रतिशत जो था ब्याज भुगतान पर खर्च करना पड़ा। इसी के साथ हमारा ये जो है टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें जो है हम 10 क्वेश्चनों को जो लिए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण रहेगा हर एग्जाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों लाइक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसे बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है, और शेयर करने का फ़ायदा भी बहुत होती है। आप सोचते होगा कि दोस्तों शेयर करके क्या फ़ायदा होगा, वो भी पास हो जाएंगे। दोस्तों अगर ऐसे विचारधारा रखोगे तो शायद आप खुद ही मुसीबत में फंसोगे। मान लीजिए अगर आपने इस क्वेश्चन को याद किया अच्छे से, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाते हो, लेकिन अगर आपके आगे और पीछे वाले व्यक्ति ने अगर याद कर रखा होगा तो अगर आपको वो हिट भी देगा थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिक जो है आपको सारे क्वेश्चन रिमेंबर हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और शेयर करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको उसके बताना है, सिर्फ क्या करना है, आपने यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और जो है आपको इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इससे क्या होगा, जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे उनको जो है इस वीडियो के बारे में पता लगेगा, देखेंगे, समझेंगे, और एग्जाम में शायद आपके भी हेल्प हो जाएगा। तो ये बहुत ही समझ वाली बात है जो कि आपको समझना चाहिए, तभी कहते हैं ज़रूरी है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। न जाने कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में आ भी जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।